Good evening, everyone. Welcome to the final session of our March month series on research methodology and statistics. I hope you have found the series enriching and insightful thus far. I am Radhika Dhaya, your moderator for today's session on behalf of the PsyConnect team. Today marks the culmination of our journey through this series, and it's been an honor to have Dr. Kulvinder Singh guiding us along the way. For those who might be joining us for the first time, let me provide a brief introduction to Dr. Kulvinder Singh. Dr. Singh brings with him a wealth of experience, boasting an impressive career spanning over 30 years in education. As a retired professor from Punjabi University, Patiala, his expertise in research methodology and statistics is unparalleled, and we have been fortunate to have him as our guide throughout this series. Over the past few weeks, we have dwelled into various crucial aspects of research, ranging from understanding the research process to mastering experimental design, analyzing group differences, exploring non parametric statistics, and honing the essential skills required for crafting a compelling academic paper. Our last session was particularly enlightening as Dr. Singh conducted a training session on crafting effective research proposals, setting the stage for today's continuation. Today's session holds a special significance as it deviates from our usual format. Instead of a structured lecture, we'll be diving into question and answer session, affectionately referred to by Dr. Singh as Coffee with Karan. This session Hmm. offers you the opportunity to clarify any doubts or queries you may have regarding the topics covered in the previous lectures. So don't hesitate to engage actively and make the most out of this interactive session. Without further ado, let's make the most out of this final session, enriching ourselves with knowledge and fostering insightful discussions. Let's dive into our question and answer session. And also, we encourage participants to share their ongoing or past dissertation experiences, including the research design, variables, and any other relevant information they want to share with us. So, I'll be starting with some of the questions that we have Okay. received. So, Yes, sir, please. Um, the first question is I am planning to make a research proposal on a topic related to layoffs, but I'm not sure of what To to what is the area? To on layoffs. what is it? I don't know, sir. It's just written layoffs, हाँ but I'm not. नहीं जिसने पूछा उसको प्लीज उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जी हाँ, जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं ना वो प्रपोजल बनाना चाहते हैं ये शब्द कुछ वेग है Yes, sir. इसके So, ऊपर हाँ 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 प्लीज उनको मैसेज कर दीजिए वो उसको एक्सप्लेन कर देंगे एक क्वेश्चन हो गया ठीक है sure, sir. But नंबर टू I नंबर think टू I think the person is not here, so we'll move on to the next हम्म। questions. नहीं उनको How? मैसेज करवा दीजिए हाँ हाँ ठीक है ना Yes, sir. कर Yes, दो sir. We our team फिर will इसका message थोड़ा सा them. एक डिफाइन कर देंगे ना वो उसको क्या मतलब चाहते हैं उसका Sure, sir. ओके So the next question is how to develop the habit of reading research papers and finding the gaps. वंस अगेन रिपीट करिए इसको How to develop the habit of reading research papers and finding the ओके gaps. ओके अभी और कोई क्वेश्चन है एंड Uh, रिसर्च गैप्स हाँ कोई और yes, क्वेश्चन sir. अभी है Or हाँ question हाँ है, प्लीज what is the easy way to get research papers and way of writing, meaning the grammars and checking the sentences? दोबारा बोलिए एक बार इसको What is the easy way to get research papers and way of writing, अच्छा अच्छा meaning grammar and checking the sentences? ये ओके कोई और इशू अभी है How do we develop a hypothesis? Is it necessary to have an objective and a hypothesis for every small variable or relationship that might come up in our नहीं research? एक मिनट रिपीट करिए स्मॉल वेरिएबल हाँ एक मिनट
Yes, sir. How do we develop स्मॉल a hypothesis? हाँ Is it necessary to हम्म, have an objective or hypothesis for every small variable or नहीं relationship हाँ that एक might मिनट come स्मॉल up? नहीं राधिका एक मिनट ये स्मॉल वेरिएबल नहीं होगा वेरिएबल तो वेरिएबल है ना स्मॉल या लार्ज नहीं होगा ना वेरिएबल एक ये शब्दों का प्रयोग करना ना हाँ जो ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है ये स्मॉल वर्सेस लार्ज ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आई फॉलो हाँ फॉलो का प्रॉब्लम होता है Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन Next question is, when do we use null hypothesis and why do we use null hypothesis? If null ओके is used, then why use alternate hypothesis? ओके और कोई अभी फिलहाल Yes, sir. What is the role of correction in ANOVA? Why is correction subtracted in every step of ANOVA? क्वेश्चन का मैंने पहले छोड़ दिया था हाँ हाँ, अभी भी इसको छोड़ के रखेंगे हाँ हाँ कोई ना हाँ ठीक है वो नोवा की समरी में एसपीएस देता है हाँ वो इनका क्वेश्चन वो एसपीएस पैकेज से जो आउटपुट आती है ना उसको देख रहे हैं हम ठीक है ना हाँ Yes, sir. हाँ, और Next question is, please explain in details what is ANCOVA. ओके इनको हाँ, इसको हमने Um, छोड़ दिया था ऑलमोस्ट हाँ हाँ, Next question is, define computerized data analysis. नहीं तो ये सवाल ही गलत है कंप्यूटराइज्ड डाटा एनालिसिस नहीं हो सकता है कंप्यूटराइज्ड डाटा एनालिसिस कुछ नहीं होता कोई ये एक टर्म ही नहीं है बेसिकली हमने डाटा एनालिसिस करना है either manually or with the help of any kind of software available on that computer system. हम्म, हम्म। हम Um, कई बार ऐसे शब्दों में उलझ जाते हैं ना ये शब्द गलत है ना समझ गए राधिका yes, sir. Yes, sir. I कंप्यूटर understand. डाटा एनालिसिस नहीं हमने डाटा एनालिसिस करना है हमने मीन एसटी निकालना है हमने कोलेशन निकालना है हमें टी टेस्ट लगा के देखना है तो कंप्यूटराइज नहीं होएगा ना वो तो Yes, हम्म? sir. जब वो तो एनालिसिस ऑफ डाटा है विद द हेल्प ऑफ आइदर मैनुअली हम उसको हाथ से हैंडल करेंगे जैसे मैंने आपके साथ कई सवालों में हाथ से हैंडल किया ना सवालों को हम्म, Yes, sir. और या हम उसको डाटा अगर लंबा चौड़ा है हमारे पास लंबा चौड़ा का मतलब है 200 का है 300 का है तो फिर वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ इधर एसपीएस और एक्सेल शीट के ऊपर जाके मीन एसटी निकालेंगे फिर टी वैल्यू निकालेंगे या कोलिस निकालेंगे कंप्यूटराइज्ड डाटा एनालिसिस नहीं है बेसिकली क्या है वी आर डीलिंग विद डाटा एनालिसिस आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ठीक है ना इनका जो क्वेश्चन उनको जो बात है वो कहेगा वो क्या चाहते हैं वो पूछ लें बीच में ठीक है ना इन्होंने सवाल किया कुछ शब्द कई बार हम बड़े चल रहे होते हैं हमको यूज करना शुरू कर देते हैं वो ठीक है कि नहीं है ठीक है ना बात ये और कोई Yes, sir. So the next question is, what is Mancova and मैनकोवा and define about it. Um, फिर एक question है, how to create a meaningful title. मीनिंगफुल टाइटल ओके Next question है, how to select a topic for research. Next question is, explain more on ethical issues in psychological research. और कुछ रहता है टॉपिक हाँ एथिकल इश्यूज के ऊपर हाँ, Next question is, I want to know more about how to build my research methodology and statistic part strong. ठीक I think so that's it. अभी हाँ फिलहाल ठीक है आएंगे तो फिर हम एडोप कर लेंगे हाँ। Sure, sir. उसको जो पहला क्वेश्चन आता है ले ऑफ वाला जो कोई लेना चाहते हैं उनको मैसेज कर दीजिए कि वो हमारे को बताएं उनका डेफिनेशन क्या है उसका जिसको वो मेजर करना चाहते हैं ठीक होगी ना बात ये हाँ
Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे बात रहती है, जो अभी बात आ रही है मीनिंगफुल टाइटल टाइटल मैंने शायद रेफर किया कि नहीं किया था, आप नोट कर लीजिए। DAI, DAI टर्म यूज कर लीजिए। ये इसका मतलब डाइजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, ये मंथली आते हैं। इसमें दो आते हैं, एक साइंसेज का आता है, एक हमारे सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज का आता है। और उसमें टाइटल जो विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पीरी थीसिस जो अप्रूव हुए होते हैं, उनका एक एक पैरा आता है। DAI अब ऑनलाइन भी है शायद, वो मैंने देखे नहीं क्योंकि मैं ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन वो प्रिंट फॉर्म में या पब्लिश डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आते हैं, हमारे पास आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में। पहले मैं HP यूनिवर्सिटी में रहा हूँ तो वहाँ भी आते रहे हैं, और भी आ रहे हैं वो। DAI, तो Yes, किसी ने sir. भी रिसर्च Noted. वर्क शुरू करना है ना अगर, तो रिसर्च जर्नल अलग से पढ़े, रिसर्च जर्नल्स प्लस वो डाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल जरूर देखे, DAI। तो वहां से उसको टाइटल से उसकी फिर आगे उसके ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव का थोड़ी मेथोडोलॉजी है, फिर एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, फिर फाइंडिंग है, इम्प्लीकेशन है। वो एक एक पैराग्राफ है, बहुत ही स्केची व्यू पॉइंट होता है। इसकी डिटेल बाद में मिलेगी, लेकिन उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट रेफरेंस मिलेगा, और थीसिस को आप वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं जाके, उसकी साइट से अवेलेबल है वहाँ पे। तो मीनिंगफुल टाइटल जब कहते हैं ना हम, रिसर्च में कभी भी टाइटल ओके नहीं होता। मैंने पिछली बार भी ये बात को कह रहा था कि वी कम आउट ऑफ सम रिसर्च इश्यूज, इश्यूज का मेजरमेंट का क्वेश्चन है, वो हमारे को लीड करता है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव है। और हमने अपने पूरे संवाद में जो मार्च कर रहा है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च पे रहा है, जिसका मतलब हमने वेरिएबल स्टडी को रखा फोकस। वेरिएबल स्टडी का मतलब है कि हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो एम्पिरिकल डाटा आता है ऑन अवर बिहेवियर, उसमें क्या क्या शामिल है। आपके पास कॉग्निटिव डोमेन है, नॉन कॉग्निटिव डोमेन है। मोटे रूप में हम डिवाइड करते हैं, दो डोमेन है, इधर कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। जब हम कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, जो मेजरमेंट जिनकी है वो इनडायरेक्ट है मेजरमेंट है, जिसको हम मेजरमेंट की स्केल कौन सी यूज करते हैं, इंटरवल स्केल यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कोर्स। तो एक्स वैल्यूज जो हम लास्ट परसों भी बात कर रहे थे, व्हाट इज एक्स? एक्स इज द वैल्यू obtained by a subject, that is student teacher, on a particular test। तो विजुअल स्टडी में हमारे पास कभी भी टाइटल की फाइनलाइजेशन नहीं होती है, कभी भी। अगर ऐसा हुआ होता, मैं पिछली बार जिक्र कर रहा था, तो हमारे पास ना अभी तक सर टॉपिक ही बन के आए हुए थे लाखों में। अभी लाखों लोगों ने PhD कर रखा है, लाखों में नहीं करोड़ों में ही हो सकता है, माइट भी, कभी काउंटिंग नहीं करी हमने। तो उनमें से एक ही एक ही वेरिएबल के ऊपर, या एक या दो वेरिएबल के इस कॉम्बिनेशन में, या तीन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में हमारे पास सैकड़ों की गिनती में, मैं हजारों में नहीं कहूँगा, सैकड़ों गिनती में रिसर्च पेपर और थीसिस अवेलेबल है। तो टाइटल कैसा होगा? आप लोग लिख सकते हैं, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तीन टाइटल मैं एक साथ दे रहा हूँ, एक ही टॉपिक को दिखने के लिए। मैं कह रहा हूँ, टाइटल लिख लीजिए, ए स्टडी ऑफ वेलनेस अमंगस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू, ए स्टडी ऑफ वेलनेस अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू सेल्फ एफिकेसी, सोशल सपोर्ट एंड इफेक्ट बैलेंस। यहाँ पर रिसर्चर का जो इशू है, वो किसी वेलनेस को दिखना चाह रहा है, और वो
किस कॉम्बिनेशन देखना चाहता है? एक सेल्फ एफिकेसी है, एक सोशल सपोर्ट है, एक इफेक्ट बैलेंस है। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका। इसी टॉपिक को मैं लिखना होगा, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ वेलनेस अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हो गया। तीसरा, इसी को मैं इसका तीसरा रूप दे रहा हूँ, वेलनेस कॉमा सेल्फ एफिकेसी कॉमा सोशल सपोर्ट एंड इफेक्ट बैलेंस अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कॉलन एक कोलिशनल स्टडी। मतलब हमारा अभी जो हम आपको मैं टाइटल बोल दिए हैं, इसमें हमारा फोकस किसके ऊपर है? वेलनेस के ऊपर है। और 3 है उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? सेल्फ एफिकेसी है, सोशल सपोर्ट है और इफेक्ट बैलेंस है। और हमारी वेलनेस मतलब अच्छेपन की भावना को कौन निश्चित करता है? तो उसके लिए 3 वेरिएबल ये आ रहे हैं। तो ये कोरिलेशन स्टडी है। तो ये टाइटल का मीनिंगफुल टाइटल का मतलब नहीं होएगा, तीनों ही टाइटल, चारों टाइटल या कोई और टाइटल बना के आएगा, वो सार्थक होंगे। क्योंकि ये हमारे हम छोड़ रखा है, रिसर्चर रिसर्च की कहीं बुक पढ़ोगे कि जो टाइटल बनाने की प्रक्रिया है वो हमारी सबसे एंड में आती है। टाइटल लेकर हम पीएचडी नहीं करते हैं, हम रिसर्च इशू को लेकर पीएचडी का टाइटल या रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल लेके आते हैं। मैं पिछली बार रिपीट कर रहा था, पहले हम बॉडी बिल्ड करते हैं, बॉडी के बाद टोपी बनाते हैं। टाइटल का मतलब टोपी है, कैप है। तो जैसा बॉडी बन के आएगा वैसी कैप होएगी। कैप के हिसाब से बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी के हिसाब से कैप बनेगा। तो ये बात पिछली बार मैंने बोली थी। तो मीनिंगफुल टाइटल का उसका मेरा अभी तक कितना ही आंसर है इसके अंदर आप लोगों के साथ, कि कभी भी हम किसी टॉपिक को फाइनल मान के चलते हैं एट वन टाइम, जिसको हमने प्रूव कर दिया है, लिख दिया है, वहां पे जो कमेटी बन के आती है, चाहे वो किसी रूप में भी, एमए में है, एमएड में है, हमारे एमएड प्रोग्राम है, एमफिल खत्म हो गया, पीएचडी प्रोग्राम में है, जो जो भी कमेटी उसको अप्रूव करती है हम उसको फाइनल मान के चलते हैं। वो फाइनल नहीं होता, अल्टीमेट नहीं होता है, उसमें कोई रक्षण की गुंजाइश होती है, लेकिन फॉर द सबमिशन ऑफ डिग्री और डिप्लोमा वो फाइनल हो जाता है। एंड सम टाइम कई लोग बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मेरा उसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनऑफिशियली हम किसी टाइटल के ऊपर जो अप्रूव बाय एनी कमेटी और एनी बॉडी है उसका हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल मीटिंग में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज इट हैव बीन अप्रूव्ड। ये क्वेश्चन ऑफ एथिक्स है जो अभी लास्ट में क्वेश्चन आया था एथिकल इश्यूज का, कि हमारे को एक ही टॉपिक के ऊपर सैकड़ों, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, सैकड़ों हमारे को पेपर मिल रहे हैं, सैकड़ों में थीसिस मिल रहे हैं, किसी को हम गलत नहीं बोलेंगे। उन्होंने उस समय जो टॉपिक या उनके एरिया में जैसे डेवलप होके आया उसको हम मान के चलते हैं और हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन ऑफ एथिक्स है, जिन्हें जो टॉपिक को बना लिया अप्रूव हो गया और उसको डिग्री अवार्ड हो गया, उसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, एकेडमिक डिबेट के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑलरेडी डन वर्क हम कहेंगे इस टॉपिक को अगर इस तरीके लिखा जाता ज्यादा बेहतर होना था। आई थिंक द स्कॉलर हुए पुट अप द क्वेश्चन, उनको ये बात थोड़ी सी उनके उसमें आएगी। ना उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। एट वन टाइम एक टॉपिक को हम ओके मान के चलते हैं। जब हम पीएचडी का टॉपिक बना रहे होते हैं रिसर्च पर्पज के लिए, तो उस समय हमारे मन में 4 5 6 टॉपिक चल रहे होते हैं, उनमें से हम एक को फाइनल करते हैं, विच इज द बेस्ट वन टू रिप्रेजेंट व्हाट आई एम थिंकिंग एट दैट टाइम। After some time there may be some change, or but I can't change the topic. And you might be knowing in every university there is a provision to change the topic. अगर आप शुरू की चौथी स्टेज में लगता है कि टॉपिक ऐसे होना चाहिए, बाद में लगता नहीं है, तो you can change the topic as per your evidence which is coming to you with the help of literature.
हमारा सेकंड क्वेश्चन बन के आ रहा है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड रीडिंग रिसर्च पेपर एंड रिसर्च गैप की बात जो करते हैं। तो रिसर्च जो टॉपिक निकल के आ रहा है या इशू निकल के आ रहा है वो रिसर्च गैप्स को फिल करने के लिए है। तो व्हाट इज रिसर्च गैप, दैट्स द क्वेश्चन। व्हाट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च गैप नहीं भी है तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारे को क्या बता रहा है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है, वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है। मैंने लास्ट टाइम भी कही थी ये बात, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हमारे को 3 या 4 अच्छे रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए डेफिनेटली, फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड। सेकंड, अच्छे पेपर का परिभाषा मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा। और दूसरी, एक जो थीसिस जरूर देखनी चाहिए उसको, वो अलग से बात होगी थीसिस। एक या दो बुक्स उसके साथ जुड़ी देखनी चाहिए, और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा जा रहा है वो देखना चाहिए। चारों बातों का जो कंटेंट है, उस कंटेंट में जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट आ रहा है वो कंटेंट कई बार उसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में कई बार जो रेफरेंस बुक से मटेरियल आ रहा है टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक राइटर तो मेरे जैसा आप जैसा कोई व्यक्ति होएगा जो कहीं से कंटेंट को लेके आ रहा है, बोरो कर रहा है, वो उसको लिखते हुए उतारते हुए कॉपी करते हुए कहीं गलती कर सकता है, कोई लाइन काट दी, थोड़ा कुछ कर दिया तो मीनिंग खराब हो सकता है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड जो रेफरेंस मटेरियल है, either from encyclopedia or from policy document, maybe of the state government, maybe of the central government, maybe of any international agency such as UN का जितना भी एजेंसीज है, हमारे एशिया पैसिफिक रीजन का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है, जो भी एजेंसी किसी प्रकार के भी ह्यूमन वेलफेयर की एक्टिविटी में काम कर रही हैं, उसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है तो उनकी रिपोर्ट्स के बीच में आपको बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मिलेंगे। उन बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस को कैसे हमने देखना है वो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। वहीं से हमारे पास रिसर्च गैप वहां पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और हम उनको देखते हैं कि ये इस एरिया में या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं किया गया है। तो वहां से हमारा गैप हमारा जाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नोट कर लीजिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिव्यू लिटरेचर के बाद ओवरव्यू है, ओवरव्यू के बाद गैप है, और इन द मोस्ट ऑफ थीसिस यू विल नॉट फाइंड दिस ओवरव्यू। अगर ओवरव्यू हम नहीं करेंगे तो हम गैप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। गैप का मतलब है कि हो सकता है कि जो काम कर रहा हो रहा हो वर्ल्ड ओवर, वो उन बिल्कुल लेके कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ग्रुप्स के ऊपर हो रहा हो, कुछ ग्रुप को ना टच कर रहा हो, तो वो हमारे लिए स्टडी एरिया बन जाता है। या एक पार्टिकुलर जो एरिया है, जैसे हमने अभी बात कर रहे लाइफ स्किल्स की बात कर रहे थे, कोपिंग कर रहे थे, वो आपको हायर एजुकेशन के अंदर स्कूल टीचिंग में या हायर एजुकेशन में कहीं पे मिल रहा है लेकिन बाकी जगह नहीं मिल रहा है, तो फिर कहते भी वो इन पॉपुलेशन तो स्टडी किया गया है, इस पॉपुलेशन पे नहीं है, वहां से गैप नजर आता है, इधर इन द टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ पॉपुलेशन और कवरेज ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर द वाइडर डिसेमिनेशन विद रिगार्ड टू दैट वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी, नॉट डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी। ये अमेरिका में हुआ है, यूरोप में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया, श्रीलंका में हो गया, कहीं पे तमिलनाडु में हो गया, तो वहां पे क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि नॉर्थ इंडिया में क्या वही पोजीशन प्रेवेल करती है कि नहीं करती है। सेम टॉपिक विद द सेम काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी, सेम टूल कैन बी रेप्लिकेटेड फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया, वो डुप्लीकेशन नहीं कहलाएगा, बिकॉज you're simply different, then your techniques of analysis will be different, or you may also change the tool also। तो इसलिए जो मीनिंगफुल टाइटल है प्लस रीडिंग ऑफ लिटरेचर, हाँ, रीडिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लास्ट टाइम मैं कह रहा था, प्लीज डोंट रिलाई ऑन द एब्स्ट्रैक्ट, kindly go through the whole content of the research paper,
जो उसने नल से कर रखा है, रिजल्ट में रिपोर्ट कर रखा है, उसको पढ़ के देखिए। तो जब पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज भी अगला क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ आ रहा था, इजी वे वाला लैंग्वेज टू कंप्रेहेंड। इजी पे कोई नहीं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट दिस वर्ड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर है, चाहे वो अखबार में है, उसके अंदर किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन का नहीं करना है, कहाँ पे वो प्रेजेंट में रहेगा, कहाँ पे पास्ट में जाएगा, कहाँ पे फ्यूचर का कहीं इस्तेमाल करना है, फ्यूचर टेंस का, तो वो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, भाषा की परिपक्वता के ऊपर। तो हमारी भाषा चाहे वो हिंदी में है, पंजाबी में है, इंग्लिश में, उसमें परिपक्वता होनी चाहिए। और उसको लाने का एक ही साधन है, गुड रीडिंग। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, रिसर्च जर्नल पढ़िए। आपको जितना शब्द मुश्किल नजर आएगा, उसका आप अर्थ ढूंढेंगे पढ़ते हुए, और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होएगी। कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज में या ग्रेजुएशन में क्या कर देते हैं, जो किताब आसान सी है, जो जैसे हमारे हम बोलते हैं, हम सिंपल सी बोलते हैं MBD, पंजाब में ज्यादा पॉपुलर है। MBD मल्होत्रा बुक डिपो की किताबें हैं, ऐसे हरियाणा में कई जगह मिलती हैं, हर कहीं मिलती हैं। वो ऐसी लोकल, उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बना रखा होता है समरी जैसा, कि विद्यार्थी इनको पढ़ ले और पास हो जाएगा। वो MBD नहीं, में कभी MBD नहीं चलेगी। रिसर्च में आपको एक ही टॉपिक के ऊपर 6 या 8 आर्टिकल पढ़ोगे, 6 के 8 के पर्सपेक्टिव में डिफरेंशियल जो होंगे, कुछ कॉमननेस होगी। कॉमननेस आपको लिए जुड़ के आ जाएगी कि ये बातें बोली जाती हैं, और ये डिफरेंशियल से आपको डिसाइड करेंगे आप, मैंने किस दिशा में मूव करना है, उनमें से कौन सी दिशा को पिकअप करना है। It applies for the selection of the variable as well. जब आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हैं, 4 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, पर आप सभी नहीं ले सकते, तो आपने जो 2 या 3 वेरिएबल पे रुक के आना है। तो कहाँ से आएगा? आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताएगा कि इन वेरिएबल पे ज्यादा काम कर रखा है, तो उनमें से हम किसको छोड़ सकते हैं, जिन पे कम काम किया उनको हम पिकअप करते हैं। ये सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम और उसके साथ जुड़ी बातें, तीनों ही बातें। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमेशा ही हमारे लिए मार्गदर्शन है। किसके लिए? टू स्टडी द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए। जो पेपर की जर्नी है कंप्लीट, वो जर्नी ही आपकी थीसिस की होगी। हम उसको लक्ष्य ना देखें। तो मैं कह रहा हूँ 2004 3 या 4 रिसर्च पेपर, एक तो थीसिस पढ़े होंगे, तो किस स्कॉलर को PhD करने में दिक्कत आ ही नहीं सकती है, ये गारंटी है मेरी। वो मोस्टली मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है, बड़ा विविड, आई विल से, बहुत ही मिक्स्ड है। बहुत लोगों ने PhD कर ली होती है, लेकिन PhD करने के बाद भी उन्होंने कोई फीसर नहीं देखा होता। तो जैसे PhD वर्क शुरू करना है, डिप्लोमा करना है, रिसर्च वर्क करना है, MA का या MSc का या वो डिग्री का, तो उसको 2 4 5 थीसिस देखने चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या कर रखा है। वो देखेगा रिसर्च पेपर में क्या रखा, रिसर्च पेपर की राइटिंग और थीसिस राइटिंग दोनों में डिफरेंस है। लेकिन थीसिस की समरी और रिसर्च पेपर का समरी, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, तो वो उनमें समानता होगी। लेकिन शब्द कितने होंगे, शब्दों का अंतर है, कितनी आपने एक्सप्लेनेशन रखा है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चाहे वो किताब का है, रिसर्च पेपर का है, इवन अखबार की खबर का है, या फिर थीसिस का है, डिसर्टेशन का है, वो ऐसा नहीं है एब्स्ट्रैक्ट से रीड किया और वहां से हमने कट एंड पेस्ट करके, मैं शब्द बड़ा टिपिकल है, कट एंड पेस्ट, जो आज की डिजिटल वर्ड की वोकैबुलरी है, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। वो until we read it, we understand it and then we write, वहां से लैंग्वेज बन के आती है। और मेरे पास अभी जितने भी जो काम आ रहे हैं, बहुत से लोगों के थीसिस जो आ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, तो उनके सभी की दिक्कत क्या आ रही है
कि पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक वही शब्द चल रहा होता है, वहाँ वेरिएबिलिटी नहीं, वो आपका एआई ड्रिवन है। और मेरी बात हो रही थी नेहा जी से कि हमको एज अ स्कॉलर, एज अ स्टूडेंट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, एआई इंपॉर्टेंट है या आई इंपॉर्टेंट है? आई का मतलब है इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आई विल से जनरल इंटेलिजेंस जो हम कहेंगे। सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस वो बात की कर दीजिए, वो क्लासिकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, कोडिंग पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारी परसेप्चुअल स्किल के ऊपर जुड़ा हुआ है, कॉग्निशन पे है, परसेप्शन पे है, थिंकिंग के ऊपर है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट है या एआई ड्रिवन है और डिजिटल है? तो मेरा अब फिर इसी में संदेश है मेरा, काइंडली यूज योर इंटेलेक्ट, योर परसेप्शंस, यूज योर कॉग्निशन, योर थिंकिंग, कि ये हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। ये सवाल जवाब हमने ह्यूमन इंटेलेक्ट ने सॉल्व करने हैं। इसमें कोई कहे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ दी स्पेशल रिसर्च। जैसे चंद्रयान पे चल रहे हैं हम, अभी हमने मंगल ग्रह पे पहुंच रहा है, सूर्य ग्रहण की, सूर्य की तरफ मूव कर रहे हैं। हमको पता सूर्य की तरफ नहीं जा सकते, इतना उसका तप ज्यादा है, पर हम वहां पे अपना स्पेस क्राफ्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट। क्योंकि उस हीट को कैसे टॉलरेट करेगा, कैसे बर्न से बचेगा, लेकिन वो उस तक पहुंचेगा। तो इतने सवाल जवाब हैं जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से निकल के आए हैं। एआई से कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा ह्यूमन लाइफ की कंडीशन को देखते हुए। चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आपका कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, चाहे आपका कोई डैम की एक्टिविटी है, कहीं पे भी आपका जो काम है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से, हमारा विवेक है, वे कम करेगा, विवेक से हम कम करेंगे। तो हमारे सभी विद्यार्थियों से और हम जो लोग जुड़े सुन रहे हैं उनके लिए मेरा एक ये संदेश कह लीजिए, मेरा निवेदन कह लीजिए कि अपने विवेक को इस्तेमाल कीजिए, उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। मशीन केवल मात्र आपको कैलकुलेशन के लिए काम आएगी, बाकी किसी काम नहीं आ सकती। एक क्वेश्चन अब चल रहा था हाइपोथेसिस का, उससे पहले मैं वो आ रहा हूँ जो करेक्टेड, जो एसपीएसएस में कई वैल्यू आती हैं, कई करेक्टेड मीन स्क्वायर क्या है, वो क्या है, वहाँ वैल्यू एक अलग नजर आती है। मैंने उसको हमेशा छोड़ के रखा है। आई नेवर गिव अ थॉट टू दैट व्हाई इट इज कमिंग। इसको आने वाले समय में कभी रिजॉल्व करके आपसे शेयर करूंगा ग्रुप में, अपने साइकोनॉट के ऊपर शेयर करूंगा मैं इस बात को। मैंने अपने कई स्कॉलर की ड्यूटी लगा रखी है जिन्होंने यूज करा है कि मेरे को इसका मतलब समझाओ, दे आर अनेबल टू आंसर। तो आई एम ऑल्सो हैंडीकैप्ड ऑन दिस पॉइंट एट द मोमेंट, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब हमारे को एसपीएसएस से आउटपुट आनी, हमने नर्स ऑफ वेरिएंस लगाना है, अभी टेल यू वेरी क्लियरली, टी टेस्ट लगाना है। टी टेस्ट में एसपीएसएस हमेशा ही दो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, कि एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस है या अनइक्वल वेरिएंस है। वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डॉट में भी दे रहा है, एक जगह वो फुल फ्लैग दे रहा है। हमारे को पता डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा ही n1 प्लस n2 माइनस 2 होएगी। डेसिमल कहाँ से आ गया? ये रिडल है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उनमें हम कई बार नहीं जाते हैं और जरूरत भी नहीं है। हमारा पर्पज क्या है? हमने अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर जरूरत पड़ती है तो स्ट्रेटेजी लगाना है, जरूरत है तो लगाओ, नहीं लगानी तो ना लगाओ। मैं पिछली बार बोल रहा था तो अभी फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर और परसेंटेज से ही एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है। नंबर एंड परसेंटेज, और कोई प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंस बेस्ड है वहां पे। जो आपका क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कब शुरू होता है? या उन्होंने कोई हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन कर रखी है? हाइपोथेसिस किसके लिए? कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स और टू वेरिएबल्स।
टू ग्रुप्स है तो मेल फीमेल में डिफरेंस है कि नहीं है, रूरल में डिफरेंस है कि नहीं है, और फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन डिफरेंस है कि नहीं है। तो उन मीन डिफरेंस को देखने के लिए आपका पास है तो आपने नल हाइपोथेसिस बनाना है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है। ये इसके ऊपर हमेशा ही डिबेट अभी चलती भी रहेगी। उसका बेसिक क्वेश्चन यही है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आपको डायरेक्शन दे रहा है तो गो फॉर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉट ओनली अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के अंदर डायरेक्शन में जाओ। अगर कंफ्यूजन है रिजल्ट्स के अंदर तो आप किसको लेके चलोगे, नल हाइपोथेसिस को। फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्टडी में ऐसा मिल रहा है कि लड़के लड़कियों से बेहतर है, कुछ जगह मतलब लड़कियां लड़कों से बेहतर है। अब आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट में नहीं जा सकते हैं कि लड़कियां बेहतर जा रही हैं या लड़के बेहतर जा रहे हैं, आपके कंट्राडिक्शन आ रही है, तो वहां पे आपके पास नल हाइपोथेसिस आएगा। लेकिन अगर हमने देखना है कि आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है और उधर अचीवमेंट है, परफॉर्मेंस है, सक्सेस है, वो तो इंटेलिजेंस डिपेंड करती है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वहां पे आप नो रिलेशनशिप की बात नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जाना पड़ेगा। तो जहां पे फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है वहां पे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे हाइपोथेसिस में जहाँ पे आपके पास अभी कंस्ट्रक्ट के अंदर कॉजल रिलेशनशिप में एक डेफिनेटनेस कहीं मर्ज नहीं हो रही है, वहां पे हम नल हाइपोथेसिस का प्रयोग करते हैं। ये एक बात थ्योरेटिकली। स्टैटिस्टिकली नल हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बेटर करते हैं because the value to be considered for significance should be 1.96 if it is at 0.05 level for null hypothesis, and it come down to 1.65 in case of 0.5 level for directional hypothesis। कि क्या लोअर वैल्यू को आप सिग्निफिकेंस की ओर मान के चलेंगे या नहीं मान के चलेंगे। तो टू टेल टेस्टिंग और आपका हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस 0.1 लेवल पे चल रहा है, तो वो आपको दिशा दे रहा होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग करना है ये रिसर्चर का दायित्व में है, और उसका दायित्व कहाँ डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन ऑफ रिव्यू ऑफ स्टडीज from different angles on that particular variable and its relationship with the variables. देन क्वेश्चन आया था एनकोवा और मैनकोवा का, एक क्वेश्चन आ रहा है और उधर क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू सेलेक्ट अ सैंपल, उसकी बात आ रही थी। सैंपलिंग वाले इशू को हेलो हेलो Yes, sir. We lost हाँ you in between. हाँ अब ठीक है ना। Yes, sir. Yes. तो जो सैंपल सिलेक्शन की बात है इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन को डिफाइन करना, और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या डिफाइंड, कुछ पॉपुलेशन डिफाइन नहीं हो सकती है जहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल पे चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या डिफाइंड। अभी जैसे हमारे पास इलेक्शन आ गए हैं, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन है, कई जगह स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी हैं, तो आप वोटर लिस्ट का देखेंगे ना, आपको वोटर लिस्ट का 7,08,935, 12,16,639 ऐसे ऐसे नंबर नजर आएगा। फिर उसमें मेल है फीमेल है, फिर कहते हैं इतनी जनरल कैटेगरी है, बीसी है, वो है, रूरल है, अर्बन है, डिवीजन है, वो एग्जैक्ट नंबर है, वो पॉपुलेशन है। बट लोग कहेंगे इसमें तो
वो लोग नाम कट गए वोट लिस्ट में, तो हम कहते हैं कि एज ऑन, कि जिस तारीख को वोट लिस्ट को फाइनल किया गया था, तो उस दिन उस रीजन की, उस असेंबली की या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की वोट लिस्ट में इतने लोग हैं जो अभी रजिस्टर्ड हैं, उसमें अभी ऐड अप नहीं हो सकते, ना उसमें कोई डिलीशन हो सकती है। हाँ, डिलीशन किसकी होगी? जो वहां पे नहीं है वो क्यों डिलीट कराने आएगा? वो जहाँ उसकी वोट बनी है वहां पे जाएगा। कोई डेथ होगी वैसे नहीं आएगा। तो इसमें वोट लिस्ट को हम फाइनाइट मान के चलते हैं। इस तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन में फाइनाइटनेस है। स्कूलों की संख्या, स्कूल के अंदर विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल है, अध्यापकों की, उनकी संख्या, ये आपके पास नीपा का, नुपा का डाटा है। हायर एजुकेशन में हर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में कोर्स वाइज डाटा अवेलेबल है, टीचर की स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जो ऑलरेडी सर्वे ऑन हायर एजुकेशन डील करता है। तो यूईसी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ एजुकेशन, पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी। तो पिछले 13 साल से वो 10-11 से शुरू करा था। तो वो डाटाबेस अवेलेबल है कि इतने मेल हैं, इतने फीमेल, इतने साइंस के अंदर, कॉमर्स में इतने, वो मैनेजमेंट में है। वो गिनती हमारे पास अवेलेबल है। गिनती में 1000 का या 500 का या 200 का कहीं एरर हो सकता है, वो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट में डाल देते हैं। जो इसी बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि पूरी पॉपुलेशन डिफाइन नहीं हो रही है। बहुत से लोग हो सकता है उससे कहीं मिस ना कर रहे हैं, पर बहुत से लोग को मिस करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप लाखों में, आपने 100 का पॉपुलेशन दिख रहा है, 100 भी बाहर घुमा लो, 2 4 5, कोई पॉपुलेशन साइज को निश्चित किया गया है। पर ये है, फ्लुएंसी कितनी होएगी स्कूल एजुकेशन में, ड्रॉप आउट कितना होएगा, वी डोंट नो, नो एस्टिमेट्स है। फिर को वायलेंस कितनी होएगी, वी डोंट नो। कोई घटना कभी कभी होती है। तो इसलिए जब पॉपुलेशन फ्राइड है, तो फ्राइड पॉपुलेशन से सैंपल का साइज लेके आने के लिए हमारे पास फॉर्मुलेशन हमने पिछली बार भी शेयर करी थी, उसको अगर चाहेंगे हम दोबारा शेयर कर लेंगे। तो पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हमारा सैंपल साइज भी फाइनाइट है, और उसका साइज भी निश्चित है कि जब बोथ फॉर्मुलेशन है, चाहे नॉन पॉपुलेशन से है या नॉन वेरिएंस से है। लास्टली, एट द मोमेंट क्वेश्चन आया था एनकोवा का, मैनकोवा का। एनकोवा का पर्पज नक्स कोवेरियंस और कोल, ये कॉम्बिनेशन है किसका? टी टेस्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, दोनों का। जब टी टेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है तो दोनों ग्रुप्स का मतलब है कि ग्रुप 1 और 2, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप, दोनों ही के बीच में क्या अंतर आता है प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट में। और दूसरी बात आती है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तो प्री टेस्ट टू पोस्ट टेस्ट चेंज भी आती है। एक चेंज किसकी है? एक्सपेरिमेंटल की, एक इसकी कंट्रोल ग्रुप की है। तो दोनों चेंज को कैसे कंपेयर करना है? या तो हम टी टेस्ट का प्रयोग करें, एक पेयर टी टेस्ट का करें, एक आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का करें। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टेक्निक बन के आई है, दैट इज एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, कोवा, जो गैरेट की बुक ने टिपिकली सॉल्व कर रखा है, कौलसा की बुक ने सॉल्व कर रखा है। गैरेट ने कहा कि 3 ग्रुप थे, एक ग्रुप को स्कोर नहीं करी गई, एक ग्रुप को प्रेज किया गया, कुछ नहीं कहा गया कि तीनों की जो पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस है क्या बेहतर हुई है या उसमें खराबी है। तो एग्जाम्पल को आप देखोगे, अगर गैरेट की बुक को देखोगे तो आपको एक्स और वाई, मैंने कोशिश करी थोड़ा सा बनाने की, जो शेयर किया था। तो वो 3 ग्रुप की सिचुएशन है, तो डाटा आ गया, तो उसके निकल के आएगा कि क्या वाकई कोई ट्रीटमेंट वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो एनकोवा बता देगा। तो एनकोवा में इंडिविजुअल टी टेस्ट लगाने की बजाय हमारे पास एक कंप्रिहेंसिव वैल्यू आ जाती है। देन वी गो विद द हेल्प ऑफ दिस एनकोवा कैलकुलेशंस टू अराइव एट मीन स्क्वायर विदिन फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन मीन्स। और जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मीन किसके बीच में है? प्री टू पोस्ट टेस्ट है। वहां तो इंडिपेंडेंट ग्रुप थे पहले, टी टेस्ट में भी, नोवा में भी। जहाँ पे फ्रॉम दी सेम टेस्ट है तो उसको देखते हैं, गेन तो दूसरे ग्रुप में भी किया होगा, तो वो गेन ज्यादा होना चाहिए। तो उस शब्दों का प्रयोग उसके लिए एनकोवा इज द ओनली टेक्निक, और किताबों में साफ लिखा गया है एनकोवा इज द बेस्ट टेक्निक टू मेक एनी काइंड ऑफ कंट्रोल
for the results to be told on particular strategy। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैनकोवा में एनकोवा मनोवा में या सॉरी एनकोवा में हमारे पास एक ट्रीटमेंट वेरिएबल है, और ट्रीटमेंट वेरिएबल के दो लेवल हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम चाहते हैं कि जो जो हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल जिसका हम एफर्ट दे रहे हैं जेंडर वाइज ओके है, क्या मेल फीमेल ग्रुप्स में एक जैसा ऑपरेट करता है, या रूरल अर्बन में एक जैसा ऑपरेट करता है, या हाई लो इंटेलिजेंस पे एक जैसा ऑपरेट करता है, या उसमें वेरिएशन जाए। जब हम तीसरा वेरिएबल लेके आएंगे ट्रीटमेंट के साथ, तो हमारे पास वही मैनकोवा बन जाएगा। सोल्यूशन इसके अवेलेबल है, इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है, अगर कोई करना चाहेगा तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। लास्टली जब हम क्वेश्चन ऑफ एथिक्स कहते हैं, एथिक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं है, एथिक्स को सिंपली आपने टूल सेलेक्ट किया है, यू विल बी फेथफुली टेलिंग अबाउट द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द पर्सन। मैंने बहुत से टूल ऐसे देखे हैं जिनमें जो ओरिजिनल ऑथर है वो मिसिंग है। मेरे पास एक डिप्रेशन का स्केल है किसी का है एवेल्यूशन के लिए, उसमें बैक का रेफरेंस है, वो मिसिंग है। जो टूल हम बना रखे एंजाइटी स्केल जा रही है उसमें स्पिलबर्गर मिसिंग है। जिन लोगों ने ओरिजिनल काम कर रखा अगर उनको रेफरेंस किए बिना ही हम बनाएंगे तो वो अनएथिकल है। इंटेलिजेंस में आप स्ट्रक्चर और इंटेलेक्ट की बात नहीं करेंगे, थॉर्नडाइक की बात नहीं करेंगे, गार्डनर की बात नहीं करेंगे, आप स्टर्नबर की बात नहीं करेंगे आज डेट में, तो कब किसकी बात करोगे? अगर आप बिना किसी को कहे कोट करते जाओगे, लिखते जाओगे, तो वो आपका एथिकल इशू है। बाकी एनालिसिस में कुछ ऐसा अनएथिकल नहीं होता है। एथिकल कहाँ पे? व्हेन यू आर रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड यू आर कोटिंग प्रॉपरली, व्हेन यू आर बिल्डिंग योर थीसिस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप उनको ड्यूली कोट और अनकोट करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास एथिकल इशू का सवाल आता है। तो वी आर टू बी कंसर्न। राइटिंग स्टाइल, जो सवाल वही आ गया, हाउ टू बी ईजी, ईजीनेस नहीं होएगी, राइटिंग करना सीखिए। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, भाषा परिपक्वता, कोई भाषा है हिंदी पंजाबी इंग्लिश, उसमें चार ही बातें लिसनिंग और स्पीकिंग ये अनपढ़ आदमी करता है, सुनता भी है बोलता भी है। लिखने पढ़ा लिखा व्यक्ति सुनता भी है बोलता भी है लिखता भी है पढ़ता भी है, और लिखने पढ़ने सुनने और उसकी जो बोलने की जो किस्मत है अच्छी होनी चाहिए। और लिटरेचर पढ़ना है तो उसको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो लिटरेचर पढ़ने के लिए हाँ पढ़ते वक्त उसको मुश्किल आएगी, जरूर आएगी, मुश्किल आएगी तो उसको नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, तो किसी को पूछे, लाइब्रेरी से किताब उठाए उसको देखे, डिक्शनरी का कोई शब्द का मीनिंग नहीं समझ आता, डिक्शनरी में जाए मीनिंग चेक करे। जितनी बार कोई स्कॉलर लाइब्रेरी की तरफ मूव करेगा, डिक्शनरी की ओर मूव करेगा, या किसी स्कॉलर की हेल्प के लिए मूव करेगा, उतना ही अच्छा स्कॉलर वो बन के आएगा। रिमेंबर दिस थिंग। एक्चुअली मुझसे मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहा है, जब मेरे को चीज़ नहीं आती थी कौन साहब पूछते ये तूने कैसे किया, या ये कैसे किया बता मेरे को, जब पूछते थे तो हम लाइब्रेरी जाकर ढूंढते थे या किसी को पूछते थे। वो उनको पता होता था लेकिन हमारे को भेजते थे वो उसके अंदर उस जर्नी में सर्चिंग में। फिर बाद में कहते नहीं नहीं हम तो ये चाह रहे थे कि तेरे को पता लगना चाहिए, कुछ चीज़ें तेरे को गाइड के बिना भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए, हु इज दैट पर्सन, या योर सेल्फ ओन सेल्फ है या आपके दोस्त मित्र होंगे। सो ये नहीं, प्योरली डिपेंडेंस ऑन गाइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन पीएचडी, गाइड साहब जो कहेंगे वही करना है। आपको अपने गाइड के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहना है, लेकिन उस साथ साथ ही अपने आप को गाइड से इंडिपेंडेंट होकर भी बहुत काम करने हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ राधिका। आई थिंक अब हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर लें। यस सर श्योर, बस एक हेलो, चैट बॉक्स, यस सर, चैट बॉक्स में क्लास क्वेश्चन है, कैन वी यूज रेडीमेड टूल्स इन रिसर्च और इट्स मॉडिफाइड वर्जन्स? भारती शर्मा ने क्वेश्चन दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस वी कैन यूज। बहुत लोग बोलते हैं कि टूल पुराना हो गया, टूल कभी पुराना नहीं होता है।
वी आर टू जस्टिफाई उस टूल के अंदर जो आइटम जो है कंटेंट है, अगर वो यूनिवर्सल कंटेंट है तो वो टूल यूज किया जा सकता है। until we have a change in the definition or construct of the variable which is under study, टूल कभी पुराना नहीं हो सकता। उसको अडेप्ट करेंगे, चाहे उसको हम अपने तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो हो सकता है उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको यूज करके हम अच्छा टेस्ट ना बना पाए। जब हम नया टेस्ट बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, अगर वो टेस्ट उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है जिसको हम देखना चाहते हैं। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टूल विच हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स, देखिए उनका यूजेबिलिटी कितना है, और उसको फील्ड टेस्टिंग करके देख सकते हैं हम छोटे से ग्रुप पे कि अगर हमारी पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं उस पर रिस्पॉन्स पैटर्न ठीक आ रहा है तो उसको ऐसा यूज करना चाहिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। Thank you हेलो। so much, sir, for your insights. Um, as our March month series on research methodology and statistics comes to a close, I want to take a moment to extend my heartfelt gratitude for your invaluable contributions as our speaker throughout this journey. Your expertise, passion, and dedication have truly enriched our learning experience over the past few weeks. We look forward to future opportunities to collaborate and learn from your invaluable insights, sir. I also want to request the participants and to stay if they can, unless they have any prior commitments, because I'm